Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 11th lecture in the lecture series of Ecology and Environment, in which we are going to talk about the kidneys of the earth. That are the wetlands. Guys, you have to write down in the comment section what are the lungs of the earth. In this video, we will be covering the types of the wetlands, the Ramsar Convention and the extent of the wetlands in India. Guys, before that, I want to ask you some questions and you have to write the answers in the comment section. Name any two ruminants. Write down the three significance of the decomposers and write down the difference between the endotherms and the ectotherms. If you don't know the answer of these questions, then please refer to my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, before watching this video, please subscribe to my channel. So guys, what are the wetlands? The land which is wet is known as a wetland. क्या सच्ची में ऐसा होता है? हाँ जी, बिल्कुल. A land which is wet is known as the wetland. Guys, in the previous videos, we have talked about the ecotone, which is basically the zone of transition between two different ecosystems. And guys, wetland is basically the example of the ecotone, which is the zone of transition between the terrestrial and the aquatic ecosystem. Guys, in the previous videos, we talked about the estuaries and the deltas, which were the example of the ecotone. And you have to write down in the comment section the name of the three important estuaries. Guys, wetlands are basically the lands which are wet and मतलब क्या हुआ, यहाँ पर होगी water logging, क्योंकि ये basically zone of transition है हमारे terrestrial ecosystem में and हमारे aquatic ecosystem में. तो basically यहाँ पर land भी present होगी and यहाँ पर present होगा water. तो basically यहाँ पर land पे होगी water logging and इसलिए यहाँ पे जो सबसे important चीज़ है वो है हमारा water. तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वाटर के बारे में बात करना. क्या यहाँ पर वाटर परमानेंट होना चाहिए या फिर टेम्परेरी? क्या वो फ्लोइंग होना चाहिए या फिर होना चाहिए स्टेबल? क्या वो फ्रेश वाटर होना चाहिए या फिर वो सॉल्टी भी हो सकता है? क्या वो नेचुरल होना चाहिए या फिर मैन इंड्यूस्ड? गाइस, जो भी ये सारी कंडीशंस देखी, इनमें हम लोग जो भी लैंड बनेगी वाटर लॉगिंग से उसे वेटलैंड बोल सकते हैं. Now coming to the areas which can come under the wetlands, like the marshes, swamps, bogs, floodplains, coastal areas and the paddy fields. Guys, paddy fields में basically होता क्या है? क्योंकि राइस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए फार्मर्स इंटेंशनली वहाँ पर करवाते हैं वाटर लॉगिंग एंड जहाँ पर होगी वाटर लॉगिंग वही तो बनता है हमारा वेटलैंड. नाउ गाइज, वी टॉक्ड अबाउट कि वाटर लॉगिंग बेसिकली फ्रेश वाटर की भी हो सकती है एंड हो सकती है वो सॉल्टी वाटर की. सो बेसिकली उसमें सॉल्ट कंटेंट कितना होना चाहिए, तो वो रेंज करना चाहिए 1000 से लेकर 4000 ppm में. ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन. इसका मतलब अगर हम लोग 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ 1000 से लेकर 4000 पार्ट्स ही होने चाहिए हमारे सॉल्ट के. अगर इससे ज़्यादा या फिर कम होगा तो बेसिकली हम उसे फर्न नहीं बोलेंगे, जो कि बेसिकली बनता है टेरेस्ट्रियल और मेराइन इकोसिस्टम से. सो गाइस, हमने देखा कि वेटलैंड्स में जो पानी है वो फ्लोइंग भी हो सकता है एंड हो सकता है स्टेबल. परमानेंटली भी लैंड पानी से कवर हो सकती है एंड साल के कुछ टाइम के लिए भी हो सकती है. वो बेसिकली नेचुरल भी हो सकता है एंड हो सकता है इंड्यूस्ड. फ्रेश वाटर की लॉगिंग भी हो सकती है एंड हो सकती है हमारे सॉल्टी वाटर की लॉगिंग. Based on this, we can divide the wetlands into various types. The first is the marshes. The marshes are basically the wetlands which have soft type of vegetation. मतलब यहाँ पर कुछ ज़्यादा woody shrubs वगैरह नहीं होती, तो यहाँ पर basically present होती है हमारी grass and the herbs. Next is the peatlands. Guys, यहाँ पर basically होता क्या है, जैसे कि आपको पता है water logging से soil aeration की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि अगर सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर जो गैसेस प्रेजेंट थी वो उससे एस्केप कर जाएंगी एंड एज अ रिजल्ट सॉइल एरेशन विल डिक्रीज. हेंस द सॉइल हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉइल एरेशन. मतलब सॉइल हाइड्रेशन के ज़्यादा होने से सॉइल एरेशन हो जाएगी कम एंड सॉइल हाइड्रेशन अगर कम होगी तो वहाँ पर सॉइल एरेशन की वैल्यू बेसिकली बढ़ जाएगी. एंड गाइज, जब सॉइल में एयर की प्रेजेंस कम है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पर एनएरोबिक कंडीशंस बन जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर डेड एंड डिकेइंग मैटर का डिकम्पोजिशन हो जाता है स्लो.
सो बेसिकली अगर वहाँ पर एनिमल्स मर जाएंगे, हमारे प्लांट्स गिर जाएंगे, तो उनकी डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होगी एंड एज अ रिजल्ट वहाँ पर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी बहुत स्लो होगी, क्योंकि बेसिकली न्यूट्रिएंट्स दोबारा से सॉइल में जा ही नहीं पा रहे, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती एंड यहाँ पर बहुत एक्सेस वाटर लॉगिंग होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल में डिक्रीज हो जाते हैं एंड हेंस यहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती। नाउ कमिंग टू द फर्न, दीज आर बेसिकली द वेटलैंड्स जो बनते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड मेराइन इकोसिस्टम से। मतलब यहाँ पर वाटर लॉगिंग होती है सॉल्टी वाटर की, मतलब उस पानी में सॉल्ट प्रेजेंट होता है। बेसिकली सीज एंड ओशियंस के इंटरफेस पर जो भी हमारे वेटलैंड्स बनेंगे उन्हें बोला जाता है फर्न। तो गाइस इसमें सॉल्ट कंटेंट होना चाहिए 1000 से लेकर 4000 ppm तक। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। नाउ गाइस कमिंग टू द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स, आखिर किन किन जगहों को हम लोग वेटलैंड के अंडर ले सकते हैं। फर्स्ट आर द मार्शेस। मार्शेस में हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सॉफ्ट तरह की वेजिटेशन होती है। स्वैम्प्स में बेसिकली होती है हार्ड वुड टाइप की वेजिटेशन। उसके बाद है हमारे रिजर्वॉयर्स। गाइस बेसिकली आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के बारे में सुना होगा, जहां पर बहुत सारा पानी स्टोर कर दिया जाता है एंड उसकी स्टीम बनाकर टरबाइंस को किया जाता है रोटेट, जिससे बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है एंड दिस इज नोन एज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। एंड इसमें हमारे वाटर रिजर्वॉयर्स बनते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है, इसीलिए इसको भी हम लोग वेटलैंड के अंडर कवर कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू द बॉग्स, यहाँ पर होता है कि सबस्ट्रेटा ज़्यादा अच्छे से नहीं बनी होती एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉक्स प्रेजेंट होते हैं एंड नहीं प्रेजेंट होती हमारी फाइन पार्टिकल सॉइल। पैडी फील्ड्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि राइस जहाँ पर ग्रो करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए फार्मर्स इंटेंशनली वहाँ पर वाटर लॉगिंग करवाते हैं एंड दैट इज़ बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ द मैन मेड वेटलैंड। नाउ कमिंग टू द कोस्टल रीजन, जैसा कि आपको पता है अगर आप कोई भी बीच पर जाते हैं तो वहाँ पर सी वेव्स आती हैं, तो उससे क्या होता है सॉइल में वाटर लॉगिंग हो जाती है एंड इसलिए हम लोग कोस्टल प्लेन्स को भी ले सकते हैं वेटलैंड्स के अंडर। नाउ कमिंग टू द फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स बेसिकली तब बनते हैं जब किसी भी रिवर में आता है फ्लड एंड वो उसके आसपास वाले एरिया में हो जाती है वाटर लॉगिंग। तो बेसिकली गाइस होता क्या है, हमारा गंगेटिक प्लेन है जहां पर गंगा में फ्लड आता जाता रहता है, तो इससे क्या होता है प्लेन में बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो जाती है एंड जहां पर हमारी वाटर लॉगिंग होगी तो उसे बेसिकली बोला जाएगा वेटलैंड। नाउ कमिंग टू द कोरल्स। गाइस कोरल इज बेसिकली द सुपर ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट एंड द एनिमल एंड इसके बारे में हम लोग इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एंड इसके बारे में डिटेल्ड लेक्चर भी मैं बनाने वाली हूँ। एंड गाइज लेक्स आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द वेटलैंड, क्योंकि बेसिकली वो ज़्यादा डीप नहीं होती, वहाँ पर लैंड भी होती है एंड होता है हमारा वाटर, तो वो बन जाता है इकोटोन बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वेटिक इकोसिस्टम। गाइज मैंने इस लिस्ट में से मैंग्रोव्स को छोड़ दिया था। मैंग्रोव्स बेसिकली क्या होते हैं, इट इज़ बेसिकली द ग्रुप्स ऑफ द हर्ब्स, श्रब्स, ग्रासेस एंड द ट्रीज which have been growing in the littoral zone। गाइस मैंने इस पर बहुत डिटेल वीडियो बनाई है एंड वो इसी चैनल पर प्रेजेंट है एंड अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Now coming to the marshes। Marshes are basically the wetlands with the soft vegetation and ये basically होते हैं हमारी lakes के साइड पर and it is intentionally grown to enhance the beauty of the lakes। क्योंकि गाइज आपने जनरली देखा होगा कि लेक्स की साइड पर बहुत सॉफ्ट तरह की वेजिटेशन ग्रो कर दी जाती है, जैसे कि ग्रास, आपको एल्गी मिल जाती है, वहां पर हर्ब्स मिल जाते हैं, तो ऐसे एरियाज को बेसिकली बोला जाता है मार्शेज। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ सॉफ्ट टाइप की वेजिटेशन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रीज नहीं होते एंड यहाँ पर कोई भी हार्डवुड नहीं होती एंड मार्शेज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनहांसिंग द ब्यूटी ऑफ द लेक्स। नाउ कमिंग टू द स्वैम्प्स। तो गाइज बेसिकली स्वैम्प्स होते क्या हैं, दीज आर द वेटलैंड्स विच हैव द हार्डवुडी टाइप ऑफ वेजिटेशन। मतलब यहाँ पर ग्रो करने वाले हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में बहुत ज़्यादा हार्डवुड प्रेजेंट होती है एंड ऐसे वेटलैंड्स को बेसिकली हम लोग बोलते हैं स्वैम्प्स। सो स्वैम्प्स आर बेसिकली द वेटलैंड्स विच हैव द हार्डवुडी टाइप ऑफ वेजिटेशन लाइक द ट्रीज एंड हमारे मार्शेस में प्रेजेंट थी सॉफ्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन। Now coming to the bogs, these are the special type of wetlands जहाँ पर बेसिकली रॉकी सबस्ट्रेटा होती है, कोई भी फाइन पार्टिकल सॉइल नहीं होती, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं ग्रो कर पाती।
क्योंकि गाइस यहाँ पर रॉक्स होते हैं तो रूट्स ज़्यादा अंदर तक भी नहीं जा पाती। इसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर होने के बावजूद वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। एंड जहाँ पर ये सिर्फ सोर्स ऑफ जो हमारा इरिगेशन है वो होती है रेनफॉल, तो ऐसे वेटलैंड को बोला जाता है बॉग्स। गाइस कितनी हैरानी की बात है कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग होती है लेकिन फिर भी वेजिटेशन को पानी नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पर रॉकी सबस्ट्रेटा है एंड रूट्स ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाती मॉइस्चर को लेने के लिए। इसलिए यहाँ पर ओनली सोर्स ऑफ इरिगेशन बन जाती है हमारी प्रेसिपिटेशन। एंड प्रेसिपिटेशन गाइस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हेलस्टोन, स्नोफॉल या फिर हमारी रेनफॉल में। नाउ कमिंग टू द मैंग्रोव्स, these are basically the communities which are made by the herbs, shrubs, grasses and the trees growing in the littoral zone। अभी ये littoral zone basically upper part of the lake, river, seas and the oceans को बोला जाता है, जहाँ पर soil में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड यहाँ पर सन की पेनिट्रेशन अच्छे से हो पाती है। मतलब यहाँ पर सनलाइट अच्छे से मिल पाती है हमारी वेजिटेशन को एंड यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। एंड जैसे कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग है तो बेसिकली इसे बोला जाता है वेटलैंड। गाइस मैंग्रोव्स आर द वेजिटेशन जो बहुत ही ज़्यादा गंदी इकोलॉजिकल कंडीशंस में भी रह सकती हैं, बहुत हार्श इकोलॉजिकल कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर पाती हैं, क्योंकि इनके पास कुछ खास तरह के इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस होते हैं जैसे कि न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोथोर्स एंड द विविपेरी। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट इट इन डिटेल देन प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियो। नाउ कमिंग टू द कोरल्स, गाइस हम लोग कोरल पर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। तो कोरल इज बेसिकली द सुपर ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट भी प्रेजेंट होता है एंड प्रेजेंट होता है हमारा एनिमल। तो गाइस प्लांट कंपोनेंट इज बेसिकली द एल्गी जिसके पास होता है क्लोरोफिल एंड वो यूज करके हमारी सनलाइट को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बना सकता है खाना एंड इसे बोला जाता है जूजेंथली। एंड गाइस जो एनिमल कंपोनेंट होता है उसे बोला जाता है कोरल पॉलिप एंड इट इज वेरी रिच इन कैल्शियम। एंड गाइस इस कोरल पॉलिप को हम लोग फ्रैक्चर सर्जरीज में भी यूज किया जाता है। तो गाइस हमारे प्लांट कंपोनेंट और एनिमल कंपोनेंट में बेसिकली एक बहुत ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें प्लांट कंपोनेंट एनिमल कंपोनेंट को फूड प्रोवाइड करता है क्योंकि उसके पास प्रेजेंट है क्लोरोफिल एंड वो सनलाइट को यूज करके एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके खाना बनाता है हमारे एनिमल कंपोनेंट के लिए। और एनिमल कंपोनेंट प्रोटेक्ट करता है हमारे प्लांट कंपोनेंट को फ्रॉम द हाई टाइड्स, ओशनिक करंट्स एंड द वेरियस अदर थिंग्स। तो ऐसे वो दोनों आराम से एक साथ सर्वाइव कर पाते हैं। एंड गाइस बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द एल्गी कोरल्स बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं एंड इसलिए कोरल्स को बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल ओशियंस। नाउ गाइस कमिंग टू द रामसर कन्वेंशन, गाइस क्या आपने कभी वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में सुना है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। आखिर क्या रीजन है रामसर कन्वेंशन के पीछे एंड क्यों उस दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। गाइस जैसा कि हमने पढ़ा कि जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं दे आर बेसिकली द किडनीज ऑफ द अर्थ, क्योंकि गाइस जब भी पानी इवेपोरेट होकर क्लाउड फॉर्मेशन होगी एंड वो दोबारा से हमारे अर्थ के सरफेस पर आएगा, तो जब वो वेटलैंड्स में जाएगा तो वो धीरे धीरे हमारे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा एंड जैसे कि वो बहुत सारी सॉइल की लेयर से पास आउट करेगा तो वो बेसिकली फिल्टर हो जाएगा एंड इससे हमारा अंडरग्राउंड वाटर बहुत प्योरीफाई हो जाएगा एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन द रिचार्ज ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर। इसीलिए गाइस इसको किडनीज ऑफ द अर्थ बोला जाता है, क्योंकि हमारी किडनीज का काम भी यही होता है। तो गाइस हमने देखा कि वेटलैंड्स आर आल्सो नोन एज द किडनीज ऑफ द अर्थ। तो बहुत जरूरी है हमारी किडनीज, जैसे हमारे लिए वैसे ही हमारी अर्थ के लिए बहुत जरूरी है उसकी किडनीज जो कि हैं वेटलैंड्स। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी एक रामसर ट्रीटी साइन की गई बहुत सारी कंट्रीज के बीच में, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सोचा कि हम अपने अपनी कंट्री के वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे जो कि किसी ग्लोबल यूज के हैं। मतलब वो वेटलैंड तो हमारी कंट्री में प्रेजेंट है लेकिन शायद उसका फायदा चाइना को मिले, बांग्लादेश को मिले या फिर नेपाल को। तो ऐसी साइट्स को बेसिकली बोला जाता है रामसर साइट्स। तो गाइस ये रामसर ट्रीटी बेसिकली साइन हुई थी 2 फरवरी 1971 को इन द सिटी ऑफ रामसर, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। तो गाइस बेसिकली हुआ क्या कि 2 फरवरी को इतनी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन साइन हुई, इसीलिए हम लोग इस दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हर एक कंट्री को अपने अपने कंट्री के वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना होता है क्योंकि वो हैं किडनीज ऑफ द अर्थ। एंड गाइस रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली बहुत सारे रामसर साइट्स हैं हमारे इंडिया में, दे आर बेसिकली 39 इन नंबर्स।
मतलब वो हमारी कंट्री के लिए तो यूजफुल है ही, लेकिन वो दूसरी कंट्रीज के लिए भी यूजफुल है, इसलिए उन्हें नाम दे दिया गया है रामसर साइट्स का। नाउ बेसिकली कमिंग टू द एक्सटेंट ऑफ द वेटलैंड्स, गाइस सबसे ज्यादा एरिया जिसका हमारे वेटलैंड्स के अंडर है वो है बोलीविया। मतलब बोलीविया में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स प्रेजेंट हैं। एंड जो हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड है उसे बोला जाता है पेंटेनल वेटलैंड। तो आपको मैप में जाकर ढूंढना है कि पेंटेनल वेटलैंड कहाँ पर है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योरीफाइंग द ग्राउंड वाटर। सो गाइस, अगर हम लोग इंडिया की बात करें सो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का सिर्फ 4.7% ऑफ द एरिया ही हमारे वेटलैंड्स के अंडर है, जो कि बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर मोर देन 2000 वेटलैंड्स प्रेजेंट हैं। लेकिन गाइस उसमें से सिर्फ 39 ही हैं जो रामसर साइट्स हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि 2000 जो हैं वो सिर्फ हमारे कंट्री के यूज के लिए हैं, वो ग्लोबल यूज के लिए नहीं है। तो हमने देखा कि 4.7% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया इज अंडर द वेटलैंड। नाउ कमिंग टू द नेशनल वेटलैंड एटलस, गाइस हमारे इंडिया में एक नेशनल वेटलैंड एटलस है जिसमें बेसिकली सारे के सारे वेटलैंड्स को मार्क कर दिया गया है, जैसे कि हम लोग किसी भी माउंटेन को मार्क करते हैं अपने मैप में। तो ऐसे ही एक पूरी एटलस बना दी गई है जिसमें सारे के सारे वेटलैंड्स को मार्क कर दिया गया है, जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये पब्लिश की गई थी हमारी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा, जो कि प्रेजेंट है अहमदाबाद में। तो इससे बेसिकली हुआ क्या कि ये हमारे पास नेशनल वेटलैंड एटलस है, तो इसको यूज करके हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती है कि किस स्टेट में किस सिटी में कैसे उनको इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया के साथ साथ रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट हो जाती हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन होगी। जैसा कि हमने देखा कि वहाँ पर मार्शेस हो सकते हैं, स्वैम्प्स हो सकते हैं, बॉग्स हो सकते हैं। सो बेसिकली उसको डिफरेंट अप्रोच चाहिए टैकल करने के लिए। तो इसीलिए जो हमारी नेशनल वेटलैंड एटलस है वो बहुत ही यूजफुल है, जो कि बेसिकली पब्लिश की गई थी हमारे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि प्रेजेंट है अहमदाबाद में। नाउ कमिंग टू द एरियाज, मतलब गाइस अगर हम लोग गुजरात का परसेंटेज एरिया देखें तो उसका, अगर हम लोग बाकी जो स्टेट्स हैं उनका भी परसेंटेज एरिया अंडर वेटलैंड्स निकाले तो हमारे गुजरात का परसेंटेज एरिया अंडर वेटलैंड सबसे मैक्सिमम आता है। अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया अंडर वेटलैंड, सो हमारे गुजरात का मैक्सिमम जो परसेंटेज एरिया अंडर वेटलैंड आता है, एंड मिनिमम आता है हमारे मिजोरम का, जो कि गाइस प्रेजेंट है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। नाउ गाइस कमिंग टू द यूनियन टेरिटरीज, तो लक्षद्वीप में प्रेजेंट है हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड्स। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि गाइस बेसिकली जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है वो बना हुआ है कोरल्स से, एंड हमने देखा कि कोरल्स भी कवर होते हैं हमारे वेटलैंड्स में, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि लक्षद्वीप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड्स हैं। एंड गाइस मिनिमम है हमारे चंडीगढ़ में, क्योंकि वो बेसिकली एक इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, वो एक आईटी हब की तरह भी बन चुका है अभी, एंड वहाँ पर बहुत टॉल बिल्डिंग्स है, इसलिए वहाँ पर वेटलैंड्स बहुत कम है। एंड गाइस अगर हम लोग नंबर ऑफ वेटलैंड्स की बात करें इन स्टेट्स, तो वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड्स प्रेजेंट हैं अगर हम लोग सारी कंट्री के वेटलैंड्स देखें। एंड गाइस मोस्ट ऑफ द वेटलैंड्स आर प्रेजेंट इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर प्रेजेंट है हमारा इंडियन ओशियन। तो गाइस सबसे ज्यादा है वेस्ट बंगाल में, एंड उससे कम है हमारे उत्तर प्रदेश में। एंड हम लोगों ने ये चीज पहले ही देख ली है कि ओनली 39 रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया। गाइस कुछ टाइम पहले तो ये सिर्फ 37 थे, एंड रिसेंटली 2 रामसर साइट्स और एड ऑन हो गए हैं इंडिया में। तो गाइस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि 2 रिसेंट रामसर साइट्स कौन से हैं। सो गाइज ये बेसिकली हमारा मैप है जिसमें सारे के सारे वेटलैंड्स दिखाए गए हैं, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं एंड जान सकते हैं कि किस स्टेट का कितना एरिया हमारे वेटलैंड्स के अंडर है। सो गाइज इफ यू enjoyed my video then do like, share and subscribe. Thank you.